लिटन स्टार्ची फर्स्ट ऑफ द ग्रेट लिटरेरी बियोग्राफर, जो है ये पहला ग्रेट लिटरेरी बियोग्राफर था माइकल डेटा। 100 years ago लिटिल स्टार्ची brought about eminent Victorians। ठीक है, इसने एक किताब लिखी थी एमिनेंट विक्टोरियंस, 4 नॉवेला लेंथ बियोग्राफिकल एसेस, जिसके अंदर उसने 4 नॉवेला लेंथ में यानी कि 4 नॉवेला लेंथ जो है उसने बियोग्राफिकल एसेस लिखे थे, कंपोज्ड एंड बर्निश्ड एक्विजिटली आयरॉनिक प्रोज that took gleeful aim at Cardinal Henry Edward Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, and General Charles Chinese Gordon. These were these 19th century England's leading Catholic ecclesiastic, the foundation of modern nursing, the headmaster of rugby school, and the father of poet and culture critic Matthew Arnold, and Empire's most beloved soldier, were each sent through the ringer. Biography has never been quite the same since. अब इसने इन चार जो पर्सनालिटीज हैं इसके ऊपर बियोग्राफी लिखी थी। बियोग्राफी कहते हैं किसी का सवाने हयात, किसी की जिंदगी के ऊपर जो है हम अगर किताब लिखते हैं तो हम इसको बियोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबियोग्राफी कहते हैं जब हम अपनी जिंदगी के ऊपर कोई किताब लिखते हैं तो हम उसको ऑटोबियोग्राफी कहते हैं। अब ये जो 4 वर्डीज थे यानी कि ये 4 जो फेमस राइटर्स थे, जिसमें कार्डिनल हेनरी एडवर्ड मैनिंग था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, थॉमस आर्नल्ड था और जनरल चार्ल्स जिसको चाइनीज गॉर्डन भी कहा जाता था। तो ये चारों जो हैं ये कौन थे? ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड के लीडिंग कैथोलिक एक्लीसियास्टिक थे। और ये कौन थे? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल एंड फादर ऑफ पोएट एंड कल्चर क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड। और ये जो है फादर था जो पोएट एंड कल्चर क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड का, और एम्पायर्स मोस्ट बिलव्ड सोल्जर वर ईच सेंट थ्रू द रिंगर। स्टार्ची बिलीव दैट बियोग्राफी वॉज एन आर्ट। वो कहता था कि ये किसी की बियोग्राफी लिखना, किसी की जिंदगी के ऊपर कोई भी तहरीर लिखना, वो एक आर्ट है। वन दैट रिक्वायर्ड फोकस, compression and shading, what he called a becoming brevity as well as an appealing style and a distinctive authorial point of view of the Victorian era 2-volume official lives. He scornfully wrote, who does not know them with their ill-digested masses of material, their slipped short style, their tone of tedious panegyric, their lamentable lack of selection, of detachment of design. Art, after all, partly consisting knowing what to leave out. Eminent Victorians, published in 1918, was Darcy's second book, preceded by a spirited and still useful landmark in French literature, by a dozen of essays and reviews. To read these or any of Starchy's shorter work, the best are collected in books and characters and portraits in miniature, is to discover a Starchy who is less feline debunker and more an amused and amuses appreciator. अब जो है, अब अगर हम देखें इसके अंदर to read these or any starchy short works, अगर हम starchy के short works देखें तो best are collected in books and characters। उसकी जो किताब थी जो कि उसने books and characters के नाम से लिखी थी, and portraits in miniature, और जो है उसने ये जो किताब लिखी थी एक्चुअली is to discover books and characters, मतलब ये एक किताब थी, और फिर उसने portrait in miniature। ये इस टू डिस्कवर कि स्टार्ची जो है वो ऐसा इंसान था जो कि फेलाइन डिबंकर नहीं था, यानी कि लोगों के बारे में बुरा नहीं लिखता था, बल्कि amused and amusing appreciator था। The sketch of the minor Elizabeth, such as Sir John Harrington, the brilliant critical pieces on Alexander Pope and Stendhal, the account of rival French salon hostess Madame Du Deffand and Mademoiselle Lespianes, these remain ever fresh examples of what one might call literary entertainment. No wonder that the matter of their subgenre Max Beerbohm esteemed Strachey so highly and spoke almost gushingly about the beauty of his prose. Little Starch's arguments in Eminent Victorian
that biographies should shape their material rather than simple ladle it out in gobs is now orthodoxy. स्टार्ची ने आर्गुमेंट किया था एमिनेंट विक्टोरियंस में कि ये जो बियोग्राफीज होती हैं शुड शेप देयर मटेरियल, उनको अपना मटेरियल जो है वो शेप करना चाहिए रादर देन सिंपली लेडल आउट इन गॉब्स, बजाय इसके कि वो जो है सिंपली इसको लेडल आउट करें इन गॉब्स में इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी के आप उसको जस्ट जो है मतलब किताब के अंदर बस लिख दें और उसकी तारीफ करके लिख दें, तो वो कहता है कि ये जस्ट एक ऑर्थोडॉक्सी और कुछ भी नहीं है. Poking fun at piety. In some ways, the prose is what mainly survives today of eminent Victorians. Being an agnostic aesthete and a leading member of Bloomsbury Circle, Starchy could not resist poking fun at piety and Ernest, seeing in them the outward form of religious mania and personal ambition. अब वो ये कहता है कि वो जो है फन मतलब वो मजाक उड़ाता है कि एक जो पर्सनैलिटी की बियोग्राफी लिखी जाती है तो हर वक्त उसकी तारीफ में मतलब उसकी अर्नेस्ट कहते हैं इम्तियाज, किसी इंसान को इम्तियाज दे देना, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर इज्जत एहतराम शो करना, तो वो कहता है कि उसके अंदर फिर आप आउटवर्ड फॉर्म ऑफ रिलीजियस मेनिया शो करते हैं और पर्सनल एम्बिशन उसमें शो करते हैं. यानी कि जब आप किसी भी इंसान की बायोग्राफी लिखते हैं तो आप उसकी तारीफ में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एज अ रिजल्ट हिज लाइवली एसेज हैव बीन dismissed by later scholars for seriously misrepresenting their subject. इस वजह से उसके ये जो एसेस थे उसके ये जो लाइवली एसेस थे वो डिसमिस किए बहुत सारे स्कॉलर्स ने फॉर सीरियसली मिस रिप्रेजेंटिंग देयर सब्जेक्ट. नो मैटर एमिनेंट विक्टोरियंस कैन स्टिल बी रीड एंड शुड बी रीड जस्ट फॉर इट्स स्टाइल एंड सुपर स्टोरी टेलिंग. लेकिन एमिनेंट विक्टोरियंस जो हैं वो आज भी सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं इसके एक सुपर स्टोरी टेलिंग की वजह से. लेट मी साइट सब एग्जाम्पल्स. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. स्टार्टी डिड नॉट वर्शिप फ्लोरेंस नाइटिंगेल एज सेंटली लेडी विद द लैम्प. वो जो है उसको जब वो नाइटिंगेल के बारे में लिखता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, तो वो उसको लेडी विद लैम्प नहीं कहता. वो ये नहीं कहता कि वो कोई सेंटली लेडी लैम्प है, क्योंकि ये सब रिलीजियस पर्सनैलिटीज थी. As she was once commonly nicknamed, but instead reviewed her as a force of nature. After describing Nightingale's accomplishment in hospital reform, he wrote, "It was not by gentle sweetness and womanly self-abnegation that she had brought order out of chaos. It was by strict method, by stern discipline, by rigid attention to detail, by ceaseless labor, by the fixed determination of an indomitable will." वो कहता है कि भाई नाइटिंगेल जो है उसने जो है एक उसकी अकॉम्प्लिशमेंट थी हॉस्पिटल रिफॉर्म में. वो ये लिखता है कि इट वाज नॉट बाय जेंटल स्वीटनेस, ये उसकी स्वीटनेस की वजह से या वीमेनली सेल्फ एबनिगेशन की वजह से नहीं था कि उसने ये उसको ये अकॉम्प्लिशमेंट्स मिल गई थी, बल्कि इस वजह से था दैट शी हैड ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ chaos, कि वो जो है मतलब वो जो है ऑर्डर को आउट ऑफ क्योस यानी कि उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट की थी और ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ शी हैड ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, क्योंकि उसने एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया था आउट ऑफ क्योस, यानी कि क्योस कहते हैं तबाही हो जाना, और उसने आउट ऑफ क्योस जो है एक ऑर्डर जो है वो ब्रॉट किया था. इट वाज बाय स्ट्रिक्ट मेथड, और ये स्ट्रिक्ट मेथड था, उसका स्टर्न डिसिप्लिन था, उसकी रिजिड अटेंशन थी टू डिटेल, यानी कि वो हर चीज को कीनली ऑब्जर्व करती थी. बाय सीजलेस लेबर, उसकी जो सीजलेस अनथक लेबर थी, मेहनत थी. बाय फिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन इनडोमिटेबल विल, और उसकी एक फिक्स डिटर्मिनेशन थी ऑफ एन इनडोमिटेबल विल. फॉर इयर्स आई केप्ट दिस पैसेज पिन्ड अबव माय डेस्क, और फॉर इयर्स जो है वो कहता है कि मैंने अपना पैसेज जो है पिंड अबव माय डेस्क, मतलब मैंने कई अरसा जो है इसी पैसेज को पिंड अबव देखा माय डेस्क, यानी कि
उसकी इसी मेहनत को, उसकी डेडिकेशन को मैंने कई अरसा अपने डेस्क के ऊपर देखा, यानी कि उसके कहने का मतलब ये कि मैंने उसके बारे में लिखा. Beside forging sentences like hammer blow, Starkey could also orchestrate long bravura passages such as one from the opening passages about Cardinal Manning. फिर वो कार्डिनल मैनिंग के बारे में भी लिखता है. ठीक है, इसके बाद कार्डिनल मैनिंग है, फिर थॉमस आर्नल्ड है, और इस तरह से जो है उसने ये 4 पर्सनैलिटीज थी जिसके ऊपर ये इसने लिखा था. तो अब वो कहता है, फॉर माई जनरेशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड हैड स्लेप्ट द स्लीप ऑफ कंफर्टेबल, द sullen murmuring of dissent, the loud battle cry of revolution had hardly disturbed her slumbers. Portly divines subscribed with the sign of a smile or a smile to the 39 articles, sang pointedly into easy living, roared gaily to hounds of morning, as gentlemen should, and as gentlemen should carry their bottles of an evening. To be in church was in fact simply to pursue one of those professions which nature and society had decided were proper to gentlemen and gentlemen alone. The fervours of piety, the zeal of apostolic charity, the enthusiasm of self-renunciation, these things were very well in their way, in their place. अब वो कहता है ये fervor of piety, zeal of apostolic charity और enthusiasm of self renunciation, उसके अंदर एक enthusiasm था self renunciation का. ये ऐसी चीजें थी जो कि these things were all very well in their way, कि ये अपनी मिसाल आप थी and in their place, but their place was certainly not the Church of England. लेकिन उनकी जो place थी वो Church of England नहीं था. तो in the essay on Thomas Arnold, फिर उसने जो है ऐसे जो थॉमस आर्नल्ड के बारे में लिखा, तो स्टार्ची ग्रोस ऑलमोस्ट aphoristic when he sums up English boarding schools at a system of anarchy tempered by despotism. और फिर जो है जब वो जो है थॉमस आर्नल्ड के बारे में लिखता है तो वो बहुत ज्यादा एफोरिस्टिक हो जाता है. एफोरिस्टिक मीन के वर्ल्डली विजडम को कहता है, वर्ल्डली हो जाता है, वर्ल्डली नेचर हो जाता है, जब वो ये सम अप करता है कि इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं वो एक सिस्टम ऑफ एनार्की है. एनार्की कहते हैं कत्लो गारत हो जाना, हर चीज बिखर जाना. ठीक है, तो एनार्की टेम्पर्ड बाय डेस्पोटिज्म. वो कहते हैं ये जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स है ना, ये एक जिसे कहना चाहिए जुल्म की इंतहा है, or refers to masters in instructive boys in the bleaking rigidities of ancient tongues. और वो रेफर कर देते हैं to master instructing boys, और वो जो है रेफर कर दिए जाते हैं मास्टर इंस्ट्रक्टिंग बॉयज को इन ब्लीकिंग रिजिडिटीज ऑफ एंशिएंट टंग. और उनको जो है एंशिएंट टंग कहते हैं पुराने लोगों को, पुराने लोगों की बातें. ठीक है, एंशिएंट टंग्स यानी कि ट्रेडिशनल लोगों को के हवाले कर दिया जाता है, उनकी ब्लीक रिजिडिटीज के हवाले कर दिया जाता है, न्यू लड़कों को जो है उनके हवाले कर दिया जाता है, एंड दैट इज द एनार्की. When Arnold are wrapped in devotion or vibrant with exhortation, sermonized in Rugby Chapel, it is said that he propounded the general principle both of his conduct and that of Almighty. Note the presumption that starch is slyly assigned to the schoolmaster. फिर उसके बाद सिनेमैटिक अकाउंट है इसका. In 1885, General Charles Chinese Gordon perished in defense of Khartoum, slaughtered by followers of Mahdi, the upstart Arab leader who claimed to be promised Messiah. अब जो है 1885 में जनरल चार्ल्स चाइनीज गॉर्डन था जो कि पैरिश कर दिया गया इन द डिफेंस ऑफ खार्टूम, जो कि स्लॉटर यानी कि उसको कत्ल कर दिया गया बाय द फॉलोअर्स ऑफ मेहदी. मेहदी के फॉलोअर्स ने उसको कत्ल कर दिया, जो कि एक अपस्टार्ट अरब लीडर था जिसने ये क्लेम किया था कि शायद वो मसीहा है. स्टार्च इज एक्सेप्शनली एक्साइटिंग. Even cinematic account of this event revolves Lawrence of Arabia in its depiction of spirituality tormented Gordon of Sudan. It also tries through a barrage of rhetorical questions to determine who was to blame for Gordon's death. The man himself, his Islamic doppelganger, the Mahdi, the English press, the Daily
दिली डेली पॉलिटिशियंस ऑफ लंदन एंड इजिप्ट। वो कहता है कि कौन आखिर कातिल था गॉर्डन ऑफ सूडान का। तो वो कहता है कि क्या उसके लिए कोई मतलब क्या उसके उसने जो है बैरेज ऑफ रिटोरिक क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस करना। तो उसने जो है डिफरेंट क्वेश्चंस किए कि भाई किसका कसूर है फॉर गॉर्डन डेथ, द मैन हिमसेल्फ, क्या आदमी खुद है, या उसकी इस्लामिक डॉपल गैंगर है जैसे मेहदी, और द इंग्लिश प्रेस, क्या इंग्लिश प्रेस का इसमें कसूर था, द डेली डेलिंग पॉलिटिशियन ऑफ लंदन एंड इजिप्ट, क्या लंदन या और इजिप्ट जो है उसके पॉलिटिशियंस थे इसमें। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम। Little Stargy did not worship Florence Nightingale as the saintly lady with the lamp, as she was once commonly nicknamed, but instead viewed her as force of nature. Still, Starchy's depiction of Middle East as a bloody crossroad where religious fervor, nationalism, inept colonialism, and rank ambition come together seem all too familiar. Note that Starchy exempts the West of his own fanaticism. As a younger soldier, Gordon was sent out to China, where he was in time to witness the destruction of Summer Palace at Peking, the act by which Lord Elgin, in the name of European civilization, took vengeance upon the barbarism of the East.